Okay, so good evening, all of you. So I'm addressing those students who have appeared in the August 2025 CFA Level 1 examinations and are awaiting their results. And this is a PSM support session. तो CFA Institute का जो practical skills module है on financial modeling, obviously उसका purpose क्या है? The purpose is that when you step into the industry, you are not only academically qualified, but you are able to do something practically. Anybody who ignores PSM would be finding it challenging to get entry-level job also. We have 3 sessions. In the first session, we are going to have tools, infrastructure tools. In the second session, we will do buy-side modeling. In the third session, we'll do sell-side modeling. Of course, these would be short sessions. So only that much can be covered, which can be covered in the short sessions. I'm joined by one of the best in the financial modeling industry that I have seen, who does it the best way, Buddhaditya, who cleared his CFA level 3 in 2022. And he's been working as a fund manager, managing more than 1200 crores. Very, very proficient with financial modeling. He will show the entire stuff to you. There are 3 tools that we will use. One is the S&P Capital IQ. The other is Wise Sheets, and the third is Screener.in. The recordings of this will not be available for anyone. Those who are attending live, that's it. Those who miss out, the recordings will not be shared. Why? Because already because of infrastructure issues, the recordings are not to the best of capability. I mean to say, already मेरा mood खराब हो गया है, ठीक है ना? No issues. I think Buddhaditya, you must have maintained your sanity. So can you please start presenting? Please do. So hello everyone. Just please confirm एक बार कि are you able to hear me? मेरा voice आ रहा है क्या? Great, perfect. ठीक है, great. चलो. So basically, the purpose of today's session is that we will be discussing certain aspects, certain tools, and we will just be setting up the infrastructure कि आपको basically theme क्या है class का, rather session का, वो discuss करेंगे. And in the next 2 sessions, we will be getting on into the hands-on modeling session, right? So that's pretty much what we will discuss. Just confirm somebody that how many of you over here are looking out for a job in equity research and investment banking. ये सारे areas में किसको किसको job चाहिए एक बार बताओ. Super, that's amazing. So basically होता क्या है ना, in the area of equity research what happens is that see, if you are doing CFA, of course you're doing CFA academically, there is absolutely no other program which is in terms of academic knowledge उससे ऊपर है, right? CFA is the best program out there. But the point is that at the end of the day, the limitation of that particular program is that कि वो पूरा ही academics में है. The PSM that the CFA Institute had provided, I mean, I had an expectation कि यार मैंने PSM अगर करा रहा है, then CFA is completely venturing into the practical world. But when I saw the content curriculum of PSM, तो उसमें क्या हुआ ना, major issues happened. Like when I was viewing through the same, I understood कि यार actually में there is a gap that the PSM shows, and that is the primary reason as to why we are doing these support sessions. So you can think of these sessions as more like a bridge कि basically अगर आप PSM देखो, at the end of the day आपको PSM तो करना ही पड़ेगा, right? And because आपको result नहीं देगा, and I would advise कि आप अच्छे से ही करो उसको, ठीक है? But जो gaps है PSM में, that is something that we will be looking into and we will try to address in these sessions, right? So सब लोग, are you all with me? Yeah, just confirm. Great, perfect, very good. So I'll just share my screen momentarily and I'll just start with a particular presentation that I had prepared. Right. So I believe my screen is visible now. Very good. Okay. So let's understand something
एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि आप लोगों का सपोज सीएफए लेवल 2 हो गया या लेवल 1 या लेवल 3 हो गया, उसके बाद आप लोग अपना जॉब हंटिंग स्टार्ट करोगे, राइट? यू विल बी मेकिंग योर सीवी एंड बिलीव मी, प्लीज मेक अ वेरी गुड सीवी, ठीक है? इट मैटर्स अ लॉट। यू विल बी यूजिंग ऑल योर कनेक्ट्स टू गेट इनटू अ सेल साइड और अ बाय साइड रिसर्च फर्म, राइट? एंड देन क्या होगा कि आपका इंटरव्यूज जो है, इंटरव्यू का कॉल आना स्टार्ट होगा, राइट? आपका इंटरव्यू का कॉल आना स्टार्ट होगा। गिवन दैट आप सीएफए कर रहे हो, वो कॉल तो आएगा ही आएगा। इट डजंट मैंने इट जस्ट डजंट मैटर, वो कॉल आएगा ही। पॉइंट इज उसके बाद क्या होगा? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट? या सो दिस इज द टिपिकली स्क्रीन। अब देखो, फॉर एनी टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इक्विटी रिसर्च इंटरव्यू आपका 3 स्टेजेस होता है, ठीक है? 3 स्टेजेस में 3 राउंड्स होता है, ठीक है? फर्स्ट राउंड इज अ टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड क्या होता है ना कि बेसिकली यू आर सिटिंग विद द इंटरव्यूअर और वहां पर वो आपको आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है वो पूछ रहा है। सो से फॉर एग्जांपल दैट गाय माइट आस्क यू वॉक मी थ्रू अ डीसीएफ, right? The other person might ask you what would be an interpretation of the EV EBITDA ratio, right? Suppose they gave you some guesstimate questions. Now ये जो टेक्निकल राउंड है ना, टेक्निकल राउंड में गिवन अपने सीएफए कर रहे हैं, there is nobody on this planet who is better equipped to answer these questions than us. वो क्या रहा है कि बेसिकली सीएफए इतना नॉलेज दे रहा है अपने को बिकॉज एवरी सिंगल एसेट क्लास वी आर डिगिंग डीप। इवन लेवल 1 क्लियर करने से भी आपका जितना नॉलेज होगा, दिस राउंड इज सिंपली गोइंग टू बी अ केक वॉक। इस राउंड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। थिंक अबाउट इट, फाउंडेशनल नॉलेज आपसे पूछ रहा है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, वैल्यूएशन, टिपिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट? मैं ये नहीं चाहता हूं कभी भी कि आप लोग कोई भी राउंड में स्टम्बल अपॉन करो, ठीक है? कोई भी राउंड में स्ट्रगल करो। सो व्हाट वी विल डू इज दैट आफ्टर द एंड ऑफ दीज 3 सेशंस वी वुड रादर, इफ यू रिक्वायर, वी वुड गिव यू अ लिस्ट ऑफ टिपिकल क्वेश्चंस जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है एंड बाय स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, what are some of the very common questions जो कि एक आईबी या इक्विटी रिसर्च इंटरव्यू में पूछता है, राइट? आई कैन गिव यू दैट, बट ऑब्वियसली आई वुड नॉट प्रेफर कि मैं आंसर्स आप लोगों से शेयर करूं। आपको करना क्या चाहिए? आइडियली यू शुड एक्सप्लोर दीज क्वेश्चंस। लाइक वॉक मी थ्रू अ डीसीएफ इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर जगह पर हर एक इंटरव्यू पे पूछता है, राइट? हाउ वुड यू टेक अ रिस्क फ्री रेट? हाउ वुड यू टेक एन इक्विटी रिस्क प्रीमियम? राइट, दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो आपको आइडियली करना क्या चाहिए? जस्ट टेक दैट लिस्ट and try to find the answers using Google or ChatGPT or Perplexity, right? ये सबको यूज करके आप आंसर्स फाइंड आउट करने का ट्राई करो। आप लोग अराउंड से अगर आप 1 या 2 दिन भी इस चीज में दोगे ना, सो मैंने ये वाला राउंड आपका क्लियर कट केक वॉक हो जाएगा। विथ मी एवरीबडी? वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ग्रेट। तो ये राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी नेक्स्ट राउंड। इंटरव्यू राउंड में आप सिलेक्ट हो गए, देन यू विल बी हैविंग द असाइनमेंट राउंड। दिस इज द मेन राउंड जिसका अपने बात कर रहे हैं, ठीक है? द स्टेज 2 एंड द स्टेज 3। राउंड 2 एंड राउंड 3 में इफ आई वेर टू टॉक अबाउट इट, इफ 1,000 people आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन, maybe 500 will be selected for round 2, और उसमें से ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 100 आर सिलेक्टेड फॉर राउंड 2 एंड आई थिंक मैक्सिमम वो सीधा 100 से 10 जन को शायद सिलेक्ट करेंगे राउंड 3 में, और 10 में से फिर 2 या 3 को लेंगे। दिस इज टिपिकली व्हाट हैपेंस इन अ टिपिकल जेपी मॉर्गन और अ गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू, right? This is the whole flow and this is how things happen, right? So this is pretty much what we are looking into. राउंड 2 में क्या देता है? राउंड 2 में आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करने को देता है। सो बेसिकली टिपिकल असाइनमेंट्स क्या होता है? या तो यू कैन बी आस्क्ड टू क्रिएट अ फुल फाइनेंशियल मॉडल फ्रॉम अ स्क्रैच एक्सेल शीट। ब्लैंक एक्सेल शीट से आपको एक पूरा फाइनेंशियल मॉडल बनाना है। They will just give you the name of the company and they will just tell you that you have to, make a 3 statement model,
You have to source the data from whatever source you want. You have to make a P&L account, balance sheet, cash flow statement. Maybe the person is also going to tell you the look back period, कितने साल का historical data आपको लेना है and कितने साल का projections आपको करना है. नाउ द पॉइंट इज दैट अगर आप ये सोचोगे ना कि यार प्रोजेक्शंस जो करना है और डेटा जो मेरे को लेना है, ठीक है, ये चीजें ये चीजों में ही मैं पूरा टाइम लगा दूंगा एंड फाइनली यू स्ट्रगल विद द मॉडल एंड अल्टीमेटली यू मेक द मॉडल. ठीक है, पॉइंट इज आपको दिया गया है सपोज 2 दिन ये चीज करने के लिए. असाइनमेंट राउंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, यू जस्ट गिवन मैक्सिमम 2 to 3 days, 2-3 दिन में आपको सारा सबमिट करना है. अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये जैसे ही आपने 2-3 दिन में सबमिट कर दिया एंड सपोज वो ठीक सबमिट किया हुआ है, ये जो स्टेज 3 है ना, डिस्कशन राउंड, इधर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा वेर यू हैव टू डिफेंड द अजम्पशंस, राइट. फिर उसके बाद रोल का डिस्कशन होगा और फिर पे सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो सारा डिस्कशन होगा. बट डिफेंडिंग द अजम्पशंस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू. कुछ ना कुछ सेंस तो आपको देना ही पड़ेगा एंड दिस विल कम ओनली बाय रीडिंग, राइट. सो some other type of assignments can be कि आपको एक मॉडल दिया हुआ है and you have to update the model, या फिर एक मॉडल दिया हुआ है जिसमें आपको बस एरर्स जो है वो फाइंड आउट करना है. नाउ कमिंग टू द फुल फाइनेंशियल मॉडल, आई एम टॉकिंग अबाउट कि सपोज आपका एंट्री लेवल जॉब लगा एंड वो करीब 12 to 15 lakhs के बीच में आपका जॉब लगा. दिस इज टिपिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. तो उसमें अगर 12-15 लाख का जॉब आपका लग रहा है पोस्ट योर CFA लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है, एंड इट हैपेंस, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना. आई हैव 2-3 फ्रेंड्स जिनका एग्जैक्टली ये हुआ है, and also I have some people who got rejected because of making certain mistakes. But believe me, I have studied both. मैंने दोनों साइड देखा हुआ है कि कहाँ पर लोग स्ट्रगल करते हैं एंड कहाँ पर बेसिकली लोगों का वो हो जाता है कि यार ठीक है, I really got through this area. I have spoken to them and that is how I have more or less created this presentation. With me, everybody? Just give me a thumbs up. Chalo, great. So I'll just stop once, and if somebody wishes to speak ek bar, I would maybe want to unmute that person, right? Just एक बार रेज हैंड कर लो आप लोगों में से किसी को भी अगर कुछ पूछना है यहाँ पर तो. कृष्ण पटेल, ओके. हाय कृष्ण. Hey Buddhaditya, how are you? Yeah, I'm good. बताओ. Yeah, so basically I'm a CFA level 1 student and Okay. right now I'm not looking for a job because Okay. like sir have mentioned that you should look for a job after completing your level 2. So right now my focus is that how can I get into a good internship? So basically क्या होता है, this is more of a career related question, तो I'm not taking these questions outright in this particular session, but again we're talking about the PSM support, ठीक है ना. Oh तो yeah. अपने क्या करेंगे, आप इंटर्नशिप में ही जाओ या अल्टीमेटली जॉब में ही जाओ, यू विल बी नीडिंग द स्किल्स, ठीक है. Yeah. Great. चलो, I'm just muting you momentarily. Okay, so I'll just ask one more person, Manish, to speak and then we will continue. Yeah, go ahead, Manish. Good evening, all. My name is Manish Gupta, and I am a working professional. Actually, I am working in the renewable sector, Very good. and as of now, I am a strategy and development manager in the one of the German company. Okay. So, actually, for the financial modeling, we are using the financial modeling. I mean, it's a very basic sites. I mean, it's a kind of the P&L account, basically. Okay. Nothing more than because you know, I think you know very well that all the renewable assets are the depreciating nature. So I mean, there will be no some kind of appreciation is there. So depreciation continuously goes down year on year basis. Let's say I want to make a company valuations. I mean, because as of now the merger and acquisition is happening very rapidly in India. So these financial model, how it can be help me. We will definitely address the same. So in this support session, what we will discuss is that first we will be discussing the issue with the PSM and then set the architecture.
And for the next two components, we will be discussing how to make a buy side mini model. We'll try to value one company using the same. And in the third session, we'll discuss the core, that is a 3 statement. Okay. Thank you. Great. Chalo. So we will continue with the presentation. तो होता क्या है ना, सपोज ये दिस इज अ केस स्टडी ऑफ अ रियल फ्रेंड ऑफ माइन, आयुष नाम था उसका, ठीक है. अब आयुष यूज्ड टू स्टडी सीएफए लेवल 1 with me, and after that he got a call from Acuity Knowledge Partners, ठीक है. Acuity is also a very good company which is into investment banking, which is into equity research and all, right? And they are more of a support company. तो उसको एग्जैक्टली ये चीज बोला गया था कि आपके पास 2 दिन है, यू हैव टू मेक अ फुल फाइनेंशियल मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, एंड the package that he was being offered was somewhere around 13.65 lakh. First round वो clear कर लिया था. So you have to make the model, you have to write the thesis on a company. Problem क्या होता है ना, ये ठीक है, okay, maybe a model can be made out of it, even a thesis can be written out of it. ये जो 2 दिन वाला टाइम दिया हुआ है ना, यहां पर पूरा प्रॉब्लम खा जाता है एकदम. The point is, what is the problem? Where do typically candidates suffer? एक तो है डेटा जो है, सपोज आज एनुअल रिपोर्ट आपको दिया हुआ है, उससे डेटा आपको एक्सेल शीट में ट्रांसफर करना है, फिर वो डेटा को क्लीन अप करके प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट बना के उसका प्रोजेक्शन करना है. फिर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस शीट मैचिंग, फॉर्मूला में कंसिस्टेंसी होगा या नहीं, फिर कुछ आप चेंज करने जाओगे एंड अल्टीमेटली मे बी इट इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू गो बैक टू द मॉडल टू सी क्या प्रॉब्लम हुआ. देन लास्टली आपका एक मॉडल बन गया तो आइडियली इट शुड बी अ स्ट्रक्चर फॉर मल्टीपल अदर सिनेरियोज, राइट? अगर नया कोई कंपनी दिया, यू जस्ट हैव टू पंच इन द डेटा एंड इट शुड टोटली कैलकुलेट द सेम, राइट? तो वो रीयूजेबिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है, एंड लास्ट में तो जाके डिफेंसिबिलिटी ऑफ अजम्पशंस जो है वो गिर जाता है, बिकॉज आपका ये 5 करते करते ही पूरा 1.5 से ज्यादा दिन लग जाता है, एंड लास्ट में यू आर सो एग्जॉस्टेड दैट यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन द कंपनी इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो ऑप्टिकली मैंने देख के जो सोल्यूशन अपने को लगता है कि पीएसएम जो है सीएफए इंस्टीट्यूट का, वो ये चीज करवा देगा, बट देयर आर मेजर प्रॉब्लम्स विद द पीएसएम. सो आई जस्ट शो यू पीएसएम में हो क्या रहा है. या सो this is the screen, and just give me a minute. Yeah. So this is the assignment of the PSM, where the case study is superb. ठीक है, केस स्टडी बहुत ज्यादा अच्छा दिया हुआ है. इसी तरह से मेरे सीनियर्स भी मेरे को बोलते हैं कि यार देखो ये कंपनी है, ठीक है, दिस इज अ टिपिकल ओवरव्यू ऑफ द कंपनी, दीज आर द असम्पशंस, रेवेन्यू एंड दीज आर ऑल, बट ऑब्वियसली प्रोजेक्टेड वाला जो है वो नहीं देता है. ये कंपनी है, यू हैव टू मेक अ फुल फाइनेंशियल मॉडल फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन अ बाय साइड और अ सेल साइड, ठीक है. मेरा जो जेपी मॉर्गन में मेरे भी जो दोस्त है एंड गोल्डमैन में भी जो दोस्त है, तो वो लोग भी, उनका भी सेम ही चीज मोर और लेस होता है. बट द प्रॉब्लम इज, जो कंपनी ये लोग करा रहा है ना, दैट इज अ टोटली हाइपोथेटिकल कंपनी बाय द नेम ऑफ ब्लू कंटेनर्स, राइट? सेकेंडली द इश्यू इज दैट, आप देखो यहां पर जो भी assumptions एंड ऑल दिया हुआ है ना फॉर द फ्यूचर, क्लियर कट बताया हुआ है. सो इट्स समथिंग विच इज वेरी क्लीन. एक तरह से आप समझो एक सम दे दिया है आपको, सम सॉल्व करना. So those of you who are in say CFA level 2, who have a flavor of what CFA level 2 is, you can say it is more like a very big item set, vignette style का stuff दिया हुआ है. Learning the look and feel of the model is very good when it comes to the CFA Institute का PSM, ठीक है. इनिशिएटिंग कवरेज, अगर आप इसको करते हो, आप इसको एक तरह से सॉल्व करोगे, एक तो आपका बड़ा सम दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, यू कैन डू ऑल दैट. बट द पॉइंट इज, आपको जब दिया जाएगा वहां पर एक्चुअली इंटरव्यू में एक रियल कंपनी, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू मेक इट हैपन? वेयर डू यू सोर्स द डेटा? यहां पर तो सारा डेटा ही आपको दे दिया हुआ है, राइट? फिर डेटा जो दिया हुआ है, फिर आप उसको एक्सेल शीट वगैरह में ट्रांसफर कैसे करोगे? एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग. सो लेट्स जस्ट सी what are the things which are being addressed. Pulling data, cleaning and preparing pro forma, not at all. ये सब कुछ भी नहीं करवाया हुआ है पीएसएम में, राइट? सो पीएसएम में आपका बेसिक 3 चीजें दिया हुआ है कि बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड,
राइट. सो एडवांस्ड में दे आर आस्किंग यू टू मेक थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, बट वहां पर भी अगर आप एडवांस्ड का, आई एम नॉट ओपनिंग द सेम टू शो यू, एडवांस्ड में भी आपका पूरा एक्सेल शीट में सारा डेटा क्लीनलीनेस के साथ पूरा दिया हुआ है. अंडरस्टैंडिंग? पॉइंट इज रियलिटी इज वेरी मेसी. ठीक है, आपका रियलिटी मैंने रियल लाइफ में आपको जब कंपनीज वैल्यू करने को दिया जाएगा, व्हेन यू विल बी आस्क्ड टू मेक अ फुल फाइनेंशियल मॉडल अगेन फ्रॉम स्क्रैच, तो वो सब कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा. सो वी विल एड्रेस दिस कि एक्चुअली में कैसे अपने एक डेटा लेंगे कंपनी का एंड अपना काश टाइम वेस्ट ना हो. दिस इज व्हाट प्रीटी मच वी विल बी डूइंग. सेकंड, तो मैचिंग द बैलेंस शीट में मोर और लेस वो लोग देता है, बट द पॉइंट इज एक आर्किटेक्चर, एक फ्रेमवर्क जो होता है ना, which can be used to basically match any balance sheet whatsoever. ठीक है, that framework is not given, that framework is lost. So we will try to address this part as well. होगा क्या, after every single session, like after this session I'll be sharing this PPT, after tomorrow and the third session I'll share a PPT. तो PPT से क्या होगा ना, you will have a reference material, quick reference, कि कहीं पर भी आप लोग अगर अटक जाओ when you will be preparing your own model, तो वहां पर आपका बेसिकली you can refer to the same and you can understand कि हाँ कैसे बैलेंस शीट को परफेक्टली मैच करवाना है. एंड एक चीज समझो यार, जो डिस्कशन राउंड होगा ना, इन द डिस्कशन राउंड आपको दो तीन चीज देख रहा है. दैट पर्सन ऑब्वियसली इज आस्किंग यू टू वैल्यू अ फुल कंपनी, 2 दिन में वैल्यू करने को बोल रहा है, एंड आपको फिर अपना थीसिस जो है दैट ऑल्सो हैज टू बी प्रेजेंटेड. सो दैट द अदर पर्सन, द इंटरव्यूअर, इज नॉट asking you to do a very comprehensive thing. That person is just seeing 2-3 things. यार इसको फाइनेंशियल मॉडलिंग आता है, इसको बैलेंस शीट मैच कराना आता है, इसको 3 स्टेटमेंट को लिंक कराना आता है, और क्या ये मोटा मोटी कंपनी को पढ़ सकता है. ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी स्टफ, दिस इज ओके. आई मीन क्लेनलीनेस वाइज, लुक एंड फील वाइज, सीएफए इंस्टीट्यूट जो पीएसएम करा रहा है उससे ऊपर कुछ नहीं है. एकदम वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है, जो लुक एंड फील है, बहुत क्लीन मॉडल है, राइट. बट अगेन इट इज नॉट यूजेबल फॉर अ डिफरेंट कंपनी. एंड डिफेंसिबिलिटी एंड थीसिस कंस्ट्रक्शन वो तो कुछ है ही नहीं. सो वी विल जस्ट बी एड्रेसिंग दिस वन क्वेश्चन, 2 दिन में कैसे अपने चीज को करेंगे. ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड दिस. वील जस्ट डिस्कस द टूल्स एंड देन इन द सेशन 2 विल यूज अ बाय साइड मॉडल, वैल्यू वन कंपनी यूजिंग डीसीएफ कॉम्स, एंड लास्ट में ऑटोमेटेड सेल साइड मॉडल अपने बनाएंगे. सो दैट क्या होगा ना, जैसे ही अपने आप बस टिकर को चेंज करोगे, या फिर आप एक तरह से अगर जैसे ही आप सिंबल को या कंपनी का नाम बस डेटा पंच इन करोगे, ऑटोमेटिकली आपका सारा आ जाएगा. ठीक है, सो या that would be more or less the thing. ठीक है, I hope it is clear to everybody, right? Chalo, very good, very good, very good. We will continue. So here's the thing. Wait. ठीक है, the first issue is that कि basically again I'll discuss this regarding आयुष only. आयुष का क्या हुआ, उसको जब एक कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल मॉडल बनाने को दिया, आई एम नॉट नेमिंग दैट कंपनी ऑब्वियसली, फिर पूरा ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आई एम नॉट डूइंग दैट. इट वाज एन इंडियन कंपनी पर से. ठीक है, एंड हिज फर्स्ट जॉब वाज टू, मैंने उसको बस 2 दिन का टाइम दिया गया. तो 2 दिन के टाइम में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू द, या आई हैव, या मैंने स्क्रीन को बेसिकली विजिट अभी शेयर नहीं किया है, आई विल जस्ट डू दैट, गिव मी अ मिनट. यस, हाँ. सो फर्स्ट तो अपने सबको पता है कि एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. I'll just show this one, right? आज तक अपने को जो पढ़ाया गया है, दैट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना है, यू कैन ऐड ग्रॉस प्रॉफिट, एसजीएनए, अदर ओपेक्स, एबिटा, डेप्रिसिएशन, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग, पीबीटी, टैक्सेस, नेट इनकम. यही तो होता है ना. कंफर्टेबल एवरीबडी? तो अपने पास अगर ये सारा फिगर्स है, एंड बैलेंस शीट का भी जो टिपिकल फॉर्मेट है वो सारा फिगर्स अगर अपने पास है,
So we more or less have the things architecture ready, and we can talk about the projections, right? बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये डेटा मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कहाँ से? सो द टिपिकल रिस्पॉन्स इज दैट कि ये जो डेटा है वो आपको एनुअल रिपोर्ट से लाना है. सो विथ मी आई हैव ओपनड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन. कैन यू सी एप्पल का इनकम स्टेटमेंट? वेरी गुड. देखो एकदम पूरा क्लीनली दिया हुआ है. नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपेक्स, देन वी हैव ईबीआईटी. डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है ना, थिंक अबाउट इट. डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है. सो बेसिकली आपका जो ओपेक्सेस है उसमें डेप्रिसिएशन कहीं मिला हुआ है. यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर डेप्रिसिएशन इन द एंटायर एनुअल रिपोर्ट, एंड फिर वहां से आपको डेप्रिसिएशन का जो फिगर है दैट यू कैन गेट, राइट? पॉइंट इज दिस इज अ फॉरेन कंपनी जिसका एसईसी के साथ फाइलिंग था, एंड आप एक तरह से अगर देखोगे इसका एक्सेल शीट वाला जो फंक्शन है वो भी दिया हुआ है. तो मोर और लेस एनुअल रिपोर्ट इज डाउनलोडेबल इन एन एक्सेल फॉर्मेट. दिस इज अ गुड थिंग. अब एप्पल की जगह यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट, जिनका भी अमेरिकन कंपनीज है, जिनका फिनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड क्लेनलीनेस इज वेरी हाई, ठीक है, उनका यहां पर यू कैन गेट अ डेटा लाइक दिस. बट द पॉइंट इज द मोमेंट यू सी एन इंडियन कंपनी ना, द होल लुक एंड फील चेंजेस. See, this is the annual report of Tata Motors, ठीक है, the consolidated P&L statement. Just see, do you see a similar format? Do you see this cleanliness over here? नहीं है ना. Just look at it. Revenue, other income, and expenses का multiple items दिया हुआ है, and total expense. Then you have something. I mean, are you understanding what I'm trying to say? Now, this is a major deterrent. बहुत बड़ा ये इश्यू होता है कि यार अपना जो क्लीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, छोटा वाला, जहां पर रेवेन्यू, सीओजीएस एंड एवरीथिंग था, उस वो कहाँ गया? व्हाई इज इट नॉट बीइंग शोन? सिमिलरली इफ यू सी द बैलेंस शीट एज वेल, द बैलेंस शीट, this is how the balance sheet looks like, right? You have to be very familiar with every single item. एंड अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप देखोगे, सो आई रेस्ट माई केस, यहाँ पर वो वाला हालत पूरा हो जाएगा, राइट? सो अगेन आयुष का सबसे पहला मैंने चैलेंज ये था कि ये जो रेवेन्यू है उसमें से अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो मेरे को दिस फिगर एंड दिस फिगर आई हैव टू ऑल एड अप, ठीक है? आई हैव टू एड दीज फिगर्स. बट थिंक अबाउट इट, दिस इज अ पीडीएफ फाइल और इसका कोई एक्सएलएस नहीं मिलेगा. सो इफ आई वेयर टू wait, if I just were to calculate the cost of goods sold, what I have to do is that I have to go over there and I have to either copy this figure from here, that is 241148, इसको कॉपी करो, करने के बाद यहां पर पेस्ट करो. मैं बोलना चाह रहा हूं कि दिस इज ओके, यू कैन डू ऑल दैट, बट टाइम तो आपको 2 दिन का दिया हुआ है ना. थिंक अबाउट इट. आपको अगर 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा का प्लॉटिंग करने को बोला हुआ है, and you are trying to make something like this so that you can analyze, so that you can value, and so that you can make a 3 statement model, और आपको ये काम करना पड़ रहा है that you are into the this particular sheet, wait, into this particular annual report PDF, and what you are doing is you're just doing a control C control V. I mean, this is so frustrating as a job, and at the same time इतना ज्यादा वो हो जाता है ना कि करते करते एक एग्जॉस्शन हो जाता है. ये करते हुए ही 1.5 दिन का टाइम लग जाता है. फिर आप प्रोजेक्शंस क्या करोगे? कैसे तैसे करके प्रोजेक्शन कर दिए, फिर राउंड 3 में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. सो आयुष वाज रिजेक्टेड ओवर देयर. You know what happened? He took financial modeling classes from a particular reputed institute. I think it was in Delhi. I don't remember. But वहां पर like I don't remember the name. तो वहां पर उस पर्सन को जब वो कॉल किया कि सर ये जो पोर्शन है आप लोग जो फाइनेंशियल मॉडलिंग कराते हो वो तो सीधा टेम्पलेट से आप अपना करा देते हो, बट ये जो पार्ट है कि एक एनुअल रिपोर्ट को लेकर के पीएनएल को अपने स्टैंडर्डाइज्ड प्रोफॉर्मा पीएनएल में कन्वर्ट करेंगे, ये पार्ट को ठीक मैंने फास्ट करने के लिए क्या होता है? तो वो लोग बोलते हैं द मोर यू डू इट द फास्टर यू विल गेट एट इट. इमेजिन द स्टेटमेंट, इमेजिन द लैंग्वेज, क्या बोल रहा है वो.
वो कॉपी पेस्ट करने को ही बोल रहा है कि और कोई रास्ता नहीं, आपको यही करना पड़ेगा. थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द द क्वालिटी ऑफ द पीपल हु आर आउट देयर. ठीक है. सो व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आई गेस सबको समझ में आ ही गया, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस दिस प्रॉब्लम बाय द वे? एक रियल कंपनी का जैसे आप फाइनेंशियल मॉडल बनाने जाओगे, आप में से कितने लोगों को ये वाला प्रॉब्लम फेस हुआ है? Absolutely. Almost everybody faces this problem. Great. So this is exactly where some of the very important and powerful tools come in. एक tool है screener.in. ठीक है. So in screener.in you can search for any company, say Larsen and Toubro. So if you are searching, so okay, so this is my customized screener का window जो I use for my daily valuations. ठीक है. तो screener.in में you get something like this. If you just want to take a quick glance at the figures, you can see this. ठीक है. ईयरली आपको पूरा प्लॉट करके डेटा इस तरह से दिया हुआ है. यू कैन सी टू इट. सिमिलरली बैलेंस शीट का भी दिया हुआ है, सिमिलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी दिया हुआ है. अगर आपको लग रहा है इसमें से भी वो कॉपी पेस्ट वाला करना पड़ेगा, नॉट रियली. देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपोर्ट टू एक्सेल. यू कैन डू दैट. यू कैन ओपन इट. ठीक है. सब कुछ आपको पूरा एक्सेल में एक शॉट में मिल गया, राइट? इनकम स्टेटमेंट, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, everything has been presented over here and पूरा चीज is being controlled by something called a data sheet. ये जो डेटा शीट है ना, अगर आप इस डेटा शीट के फिगर्स को ही बस यूज करोगे, ठीक है, so you will be able to make a very automated model by and large. Suppose at sales है, sales के बाद you have say net income, net profit. So you can take a percentage, you can see net margin and you can put it in your model. And जैसे ही आप कंपनी को चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली everything will change. Right? So this is a very powerful tool that you have. Imagine you are able to मैंने जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को exactly करना कैसे है, not by practically using screener but by using something more powerful. ठीक है. screener.in का डेटा या फिर कोई भी वेंडर का जो डेटा बेस है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो, जिसका ऑलरेडी एक्सेल में एवरीथिंग हैज मोर और लेस बीन गिवन टू यू एज अ फॉर्म ऑफ डेटा. ठीक है. ये सारा जो दिया हुआ है, इसको अगर आप यूज करते हो ना, तो होता क्या है, आपका मॉडल बिल्डिंग बिकम्स अ वेरी स्मूथ एंड फास्ट एक्सरसाइज. हाफ एन आवर टू मैक्सिमम 1 आवर में यू विल बी एबल टू फिनिश इट अप. ठीक है. विथ 2-3 टाइम्स का प्रैक्टिस. नाउ देन रिमेंबर, अगर आप से आधा दिन ही लग जाता है, हाफ डे को आप सिर्फ यही कर दिए, ठीक है, remaining 1.5 day you can simply focus on making the assumptions better. You can focus on simply talking about the company. You can focus on studying the company, right? There are multiple frameworks to study the company, but that is currently not the purpose of the sessions. But at the end of the day, I'm talking about how can you automate this model building वाला part, ताकि आपका ये सब जो चीजें है ना कि डेटा कॉपी पेस्ट करना है, वो सब में टाइम ना जाए. So this is the first thing. Second, I'll show you Capital IQ Pro. Can you see my screen? Just reply. Very good. So over here, I'll show you something. Say search for a company, Tata Motors. The amount of data that you can get from Tata Motors. So in my firm, we use Capital IQ Pro aggressively to create multiple models. But the amount of data that you can get from Capital IQ Pro is huge. लॉन्ग बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज का मिल जाएगा कैपिटल IQ Pro का. ठीक है, कि कौन कौन से सेगमेंट में है कंपनी एंड ऑल.
बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ मी टू शो कैपिटल IQ Pro लाइक दिस. मेरे को ये दिखाना है आप लोगों को. फिनेंशियल्स में जाओगे ना, यू विल सी समथिंग कॉल्ड टेम्पलेटेड, यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज रिपोर्टेड. टेम्पलेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है, दुनिया का कोई भी कंपनी, ठीक है, सपोज दैट इज एन अमेरिकन कंपनी, सपोज दैट इज एन इंडियन कंपनी, यूएस का कंपनी एक सर्टन फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है अपना एनुअल रिपोर्ट्स, एंड इंडियन कंपनीज एक सर्टन फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है. टेम्पलेटेड का मतलब क्या है? कैपिटल IQ सिंपली डज दिस. जस्ट गो टू द इनकम स्टेटमेंट, यू विल सी. दिस इज देयर ओन फॉर्मेट. झमेला किया ही नहीं है वो लोग, क्लियर कट बोला हुआ है, देखो भाई दिस इज आवर सिंपल टेम्पलेटेड फॉर्मेट. हम लोगों ने ये जो पूरा काम है ना वो आपको करके ही सीधा दे दिया है. यू डोंट नीड एनी डेटा एंड समथिंग लाइक दिस. You can export this data to Excel as well, right? So you have the option export to Excel. Sorry. Yeah, give me a minute. Okay, so for some reason it is not allowing me to share the capital IQ wala thing, but you got the hint, right? आप उस डेटा को भी एक्सेल में ले सकते हो. बट दिस टाइम क्या है ना, देखो, I'll tell you the thing. What happens is that capital IQ Pro जो है, that costs you north of $19,000, which translates to somewhere around 20 to 25 lakh rupees. एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो पर्सन से इंटरव्यू में ही भी जा रहा है या फिर जो पर्सन से वैल्यूएशन भी कर रहा है, एक मैंने रिटेल इन्वेस्टर के लिए गेटिंग हैंड्स ऑन कैपिटल IQ इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, मैंने टू स्पेंड दैट मच अमाउंट एंड दैट टू इन डॉलर्स, ह्यूज. Screener.in जो है, that is a very affordable product, but there is a problem with Screener.in, and I'll show you the main issue when that people face when using Screener.in is this. कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना बस छोटा सा एक एकदम पूरा क्लब करके प्रोडक्ट दे दिया है. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. इफ यू आर सेइंग कि पर सर बेसिकली देखो बैलेंस शीट तो दिया हुआ है, कैन बी नॉट मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आउट ऑफ इट? एब्सोल्युटली यू कैन. बट थिंक अबाउट इट, यहां पर अदर लायबिलिटीज जो है ना, इसका ब्रेकअप करके पेएबल्स एंड रिमेनिंग को दिया नहीं हुआ है, वर्सेस यहां पर रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री दिया हुआ है. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, मेरे को सपोज वर्किंग कैपिटल का प्रोजेक्शन करना है. वर्किंग कैपिटल का प्रोजेक्शन के लिए आई नीड टू कैलकुलेट द डेज ऑफ रिसीवेबल, डेज ऑफ इन्वेंट्री, डेज ऑफ पेएबल, टू कैलकुलेट द कन्वर्जन साइकिल, राइट? रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री आई कैन डू, बट अदर लायबिलिटीज जो है, इसको अगर मैं पेएबल्स मानता हूं ना, सो दैट फिगर जस्ट कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन, right? So that is a problem. We will see how to even work around this area, but momentarily this is a major problem of Screener.in. That is a limitation of the data, and this is a problem with even the premium version of capital IQ, sorry, premium version of Screener.in. Clear? Great. अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं, दैट इज समथिंग कॉल्ड वाइज शीट. ठीक है, नाउ दिस इज एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर, एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वाइज शीट, दिस इज अ डिस्कवरी दैट वी हैड डन अ ईयर अगो, एंड वी हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन लव विद दिस एंटायर सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली. ठीक है, जस्ट बी क्लियर ऑन वेदर यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. ठीक है, एक बार बस क्लियर कर दो, आप स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, एक्सेल शीट दिख रहा है या नहीं. ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड. So, do you see this Wise Sheet का plugin? ठीक है, if you click on this,
अगर आपको बेसिकली वाइस शीट का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल स्टिल बी एबल टू हैव अ ट्रायल वर्जन ऑफ 3 कंपनीज विच इज Amazon, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। 3 कंपनी का आप मोर और लेस आपको एक्सेस दिया गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं बस आपको दिखा रहा हूं वाइस शीट इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर क्यों है। कोई भी कंपनी का अगर मैं नाम लेता हूं, ओके, जस्ट टेक एनी नेम ऑफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम लो विच इज इन द फेस ऑफ द अर्थ, बट अगेन फॉर लिस्टेड स्पेस। ओके, ओके, बहुत सारा कंपनीज आ रहा है, ठीक है, श्योर। सो लेट्स टेक, ओके, फाइन, सो लेट्स टेक आईटीसी पर से। यहां पर सिंपली नाम दो, वेट, आईटीसी लिमिटेड, राइट। यहाँ पर डू यू सी एज रिपोर्टेड बाय एसईसी फाइनेंशियल्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट्स। सो कंपनीज जो लोगों का बेसिकली एसईसी के साथ फाइलिंग होता है, ठीक है, लाइक ऑल द यूएस कंपनीज एंड एनी कंपनी जो एसईसी से फाइल करते हैं, उनका एज रिपोर्टेड भी मिलता है। बट मोस्टली जो स्टैंडर्डाइज, दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट टेम्पलेटेड वर्जन, ठीक है, जो कैपिटल आईक्यू में अपने देख रहे थे। प्रेस ऑन, क्लिक ऑन दिस and data type annual, simply hit get data, just see what happens. Did you see अभी क्या हुआ? ऑटोमेटिकली मेरे एक्सेल शीट में सारा डेटा आ गया। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, some key metrics, free cash flow per share, market cap, PE ratio, debt equity, debt to asset, and growth का सारा पैरामीटर्स। थिंक अबाउट इट, 2007 से सीधा मेरा डेटा आया हुआ है। Able to see? And look at the format, कितना clean format में stuff दिया हुआ है। We've got revenue, we've got cost of revenue, gross profit, we've got all the 3 operating expenses, then we have EBITDA ratio. Think about it, and सब कुछ मेरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा क्लियर कट मेरे को सारा डेटा दे दिया। इमेजिन यू हैव समथिंग लाइक दिस ऑलरेडी मेड, राइट। इससे अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जब स्टेटमेंट फिल इन करना है, think about how easy it is going to be, right? I'll just hit over there, I'll show you revenue, just put in cost of revenue. If I just put in over here, and automatically I can fill this entire stuff up. एंड इमेजिन अगर मेरे को से 5 साल का ही स्टेटमेंट का डंपिंग एंड ऑल करना है, से 5 साल का हिस्टोरिकल लुक बैक पीरियड दिया हुआ है, दैट कैन ऑल्सो बी डन, राइट। Are you understanding the power of wise sheet? I'll momentarily stop over here, and if somebody wishes to speak, I'll just take 1 or 2 questions. Anybody wants to speak? Okay, Arushi. Yeah, hi Arushi. I think you are, yeah, just unmute. Hello. Yeah, hi Arushi. Please go ahead. Actually, I just wanted to ask, like, if I'm applying for jobs, but like, if they ask me to make models and I can't afford to have a subscription right now, even for the same that you have just told, what best should I do to sort that? Okay, so you are asking if you cannot afford a subscription of Wise Sheet as well, right? Like, sir, obviously for an interview, I can't afford it. But like afterwards, I can afford the same having a job. But right now, I can't. Agreed, no worries. तो बेसिकली इन दैट केस फिर आपको थोड़ा screener.in का जो डेटा है उसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है।
सो वी विल ऑल्सो गिव यू गाइडेंस ऑन स्क्रीनर का जो डेटा है उससे आप कैसे Okay. मॉडल एंड एवरीथिंग बना पाओगे सो दैट इट इज एक्सेसिबल टू ऑल. बट ऑब्वियसली जो लोग भी एक तरह से वाइस शीट को यूज कर पाएंगे एंड द सब्सक्रिप्शन इज वेरी नॉमिनल, मैंने अराउंड $60 विच इज अराउंड 5,000 रुपीज. सो इफ यू डिवाइडेड बाई 12 सो इट इज लोअर देन 500 रुपी अ मंथ. ठीक है, तो मैंने इतना Yes. कम थी सब्सक्रिप्शन में आपको इतना सारा फीचर्स दे रहा है. So, just to wrap up today's session, I'll also share मैंने 2-3 more insights on Wise Sheet, किस तरह से आपका यूज कर सकते हो Wise Sheet को. ठीक है, so more or less that will suffice, but obviously definitely अपने फिर screener.in जो है उससे भी थोड़ा बहुत अपने we will share a model that we had made using screener.in, you will be able to understand. ठीक है, तो एंड अगर कुछ होता भी नहीं है वी विल जस्ट गिव यू गाइडेंस ऑन हाउ टू मेक अ मॉडल यूजिंग screener.in का डेटा एज वेल. ठीक है, सो दैट विल मोर और लेस suffice. डज इट वर्क? Sure, sir. ग्रेट ग्रेट. ठीक है, या फ्री ट्रायल्स आर डेफिनेटली देयर बट उसमें आप 3 ही कंपनी का यूज कर पाओगे. सो वाइस शीट को कैसे इनेबल करेंगे एक्सेल में, दैट इज समथिंग दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, मे बी आप यू कैन डेफिनेटली मैंने एक्सप्लोर द सेम वाइस शीट इंटीग्रेट करना कोई बड़ा बात नहीं. विल सी नेक्स्ट सेशन में व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज वाइस शीट का डेटा एंड वी विल ट्राई टू मेक अ मिनी मॉडल आउट ऑफ इट. ठीक है, I'll just take one more doubt. Anybody wishes to speak, just raise your hand. I'll just ask you to unmute. I'll just unmute you. Okay, so I see Gaurav Sethi. Okay. Hi, Gaurav. Please go ahead. Hello, Gaurav. Okay, I think for some reason is not available to talk. I think, yeah, Dhruv. Go ahead, Dhruv. Dhruv, hello. हेलो सर, हेलो। Yeah, एम yeah, आई hi. ऑडिबल? Yeah, you are audible. Go ahead. सर, अगर मेरे को फाइनेंशियल मॉडलिंग का फुल फ्लेज कोर्स करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स जो आप करना चाह रहे हो, बेसिकली ये जो 3 सपोर्ट सेशन है, ठीक है, हम्म। आपको अगर 3 स्टेटमेंट फुल फ्लेजेड बनाना है तो इन द थर्ड सेशन वी विल कवर द एंटायर थिंग. ठीक है, ओके थर्ड सर, सेशन ओके। अपने वो चीज को पूरा कवर करेंगे. मोर और लेस आपके पास आर्किटेक्चर आ जाएगा एंड देन आप पूरा पीएसएम कर लो, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके सर, ओके, थैंक यू। Very good. And yeah, so basically using AI, definitely you can use AI. ये जो अभी आपने ये देखा ना वाइस शीट का, that was actually using AI to do all that. ठीक है, AI को यूज करके मे बी यू कैन डेफिनेटली आप एक तरह से अगर उसको मैंने एनुअल रिपोर्ट को चैट जीपीटी में देते हो एंड यू आस्क इट टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सेल. ठीक है, या एब्सोल्युटली यू विल रिसीव द गाइड बुक, डोंट वरी. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू एक्सेल, फिर इन दैट केस आपका वो भी हो जाएगा. ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, चैट जीपीटी बिकॉज ऑफ इट्स हेलुसिनेशंस इट कीप्स ऑन मेकिंग मल्टीपल मिस्टेक्स. ठीक है, वाइस शीट टाइप का अगर कुछ आप यूज करोगे तो मिस्टेक का स्कोप ही नहीं है, राइट. एंड गौरव, आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल लास्ट टाइम, सो आई जस्ट unmute you once again, right? Yeah, please unmute and you can speak. Gaurav? Hello? Okay, I think there's really an issue on your end. Apologies. ठीक है, आप अपना डाउट जो है वो आप टेक्स्ट कर देना, that can be sorted out. Anyway, so I'll just start with Wise Sheet once again. And अब मैं आपको एक और फीचर दिखा रहा हूँ Wise Sheet का. So if you guys are doing it parallelly with me, अगर आपका Wise Sheet कभी इंस्टॉल किया हुआ है, that's also a great thing. ठीक है, I would rather ask you, I'll maybe show you in a particular video that I will record or in a guideline that I will write. ठीक है, तो वहां पर मैं दिखा दूंगा Wise Sheet को कैसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है.
फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक एक्सरसाइज जो आपको करना चाहिए आइडियली आज के सेशन के बाद, ठीक है, वो आपको करना है यूजिंग वाइज शीट, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबब्ली मैं एप्पल कोई कंपनी के बारे में बोलूंगा, amazon के बारे में, या जो फ्री ट्रायल में जो अवेलेबल है, दैट इज समथिंग यू गाइज नीड टू डेफिनेटली डू, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि बेसिकली आप अगर कोई कंपनी के ऊपर व्यू पॉइंट दिखाने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, सपोज यू आर वांटिंग टू फोरकास्ट द फ्यूचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, फॉर दैट how important do you think industry analysis is? What do you think? How important is industry analysis? All features of Screener are available on Wise Sheet and even more, by the way. Very much. Absolutely. It is the base. This is what I was wanting to hear. Industry analysis is the base एक तरह से, ठीक है, कि बेसिकली अगर मैं बोलता हूं कि रेवेन्यू अगर है, राइट, रेवेन्यू अगर है, तो व्हाट इज द टोटल मार्केट साइज ऑफ से द ऑटो सेक्टर, इफ आई वर टू डिफाइन दीज आर द ऑटो कंपनीज, ठीक है, ये सारा ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, these companies they make the auto sector. This session is obviously not a session where we are seeing ki market sizing वगैरह जो है वो कैसे करते हैं, that's a completely different topic altogether, but maybe these are all these companies make up the auto sector. मेरे को जानना है कि से बजाज ऑटो जो है उसका मार्केट शेयर क्या है, and has Bajaj Auto in the sector been a market share gainer or a loser? कौन सी कंपनी का मार्केट शेयर हाईएस्ट है, that's what I want to understand. अगेन यूजिंग क्वांटिटेटिव नंबर्स, मेरे को ये भी देखना है कि ग्रॉस मार्जिन्स इन द एंटायर इंडस्ट्री, ठीक है, हैज इट, व्हाट इज द टिपिकल ट्रेंड ऑफ ग्रॉस मार्जिन। अगेन मेरे को सपोज ये भी देखना है कि ऑपरेटिंग मार्जिन का ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द बेस, एंड कोई कंपनी का अगर सपोज मैं बोलता हूं कि से ऑटो सेक्टर में सपोज द दिस कंपनी से हीरो मोटोकॉर्प इज अर्निंग से 5% ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, 5% ग्रॉस मार्जिन. Now the point is, figure might sound very small, but suppose collectively all the companies they have earned a gross margin of somewhere around 3%. So that 5% optically might look to be very, very small, but actually it is doing better than the industry. So margins, then operating income, and say then net income. मेरे को ये पूरा टेबल को ultimately fill up करके I have to take a view, right? Now the point is, अगर मेरे को ये 5 साल का रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, इनकम, ऑपरेटिंग इनकम रेशियो, नेट इनकम रेशियो, ये सब कुछ मेरे को देखना है, से इवन इफ आई एम यूजिंग screener.in, डोंट यू थिंक मैंने आई विल रन इनटू अ मेजर प्रॉब्लम। मैं जैसे ही इधर से जाता हूं इनटू सपोज screener.in, ठीक है, यहां पर मेरे को अगर लिखना है बजाज ऑटो, तो मेरे को या तो यहाँ का पांचों एक्सेल शीट, या सपोज 10-15 कंपनीज अगर है तो 10-15 कंपनी का एक्सेल शीट डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट? वहां से देन आई हैव टू कैलकुलेट स्टफ। अगेन अगर मैं एक तरह से इधर जाता हूं, सो मोर और लेस यहाँ पर जो कंपनीज देता है थोड़ा बहुत उनका देख सकता हूं, बट दैट्स ऑल्सो वेरी लिमिटेड। यहां से अगर मेरे को फिर वापस से कॉपी पेस्ट वाला काम करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम. Now, this is again where Wise Sheet can be extremely useful with a very powerful function. I'll show. यहाँ पर what I will do is equals to WISE, Wise. तो Wise Sheet जैसे ही आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, एंड आई थिंक प्रीमियम वर्जन में ही ये अवेलेबल है, बट आई विल सी, ठीक है ना। यहाँ पर आप टैब करो तो आपको बोल रहा है कि यार टिकर सिंबल क्या होना चाहिए। बाय द वे ये जो सिंबल्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, these symbols are available on Yahoo Finance. Wise Sheet pulls data from Yahoo Finance का टिकर्स, ठीक है। यहां पर मैंने बस सिंबल लिया, कॉमा, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को रेवेन्यू चाहिए, राइट, कॉमा, और पीरियड क्या चाहिए, मुझे 2025 का रेवेन्यू चाहिए। सपोज दिस इज द फिगर, एंड इसको मैं एक तरह से, ये तो फुल फ्लेजेड फिगर आया हुआ है ना, I'll just do in crores. Did you see what happened? सीधा एक फंक्शन से, कोई भी चीज नहीं, कोई गूगल फाइनेंस एंड ऑल नहीं, क्लियर कट एक फंक्शन से आई एम एबल टू रिकॉल दैट रेवेन्यू।
यहाँ पर what I can do is think about the amount of time that I will get. मैं यहाँ पर I'll just lock in the column. I think column को lock in करना सबको आता है. मेरे को क्या चाहिए? I want to lock in column number A. तो column A के पहले मैं बस डॉलर साइन लगा दूंगा. And revenue, this portion I wanted to change. एंड मैं एक तरह से जो ये है रो जो है इसको भी लॉक इन कर दूंगा सो दैट मेरा टाइमिंग जो है वो मैच कर जाए. ठीक है. ये करने के बाद इफ आई जस्ट डू दिस, या revenue I have to log in. Yes. Did you just see what happened? इसको मैं अगर drag down भी करता हूँ, see, I have the entire industry का data. Understanding what is happening 2022 में M&M का revenue का data this was there. एक फंक्शन से मुझे कोई भी डेटाबेस में ना कैपिटल IQ में ना screener.in पे कहीं भी पर भी मेरे को जाना नहीं पड़ा. I can simply do a sum if I were to gauge the market size of the entire industry. ठीक है, this is just a small sample set, right? मेरे को अगर मार्केट शेयर देखना है, सपोज बजाज ऑटो का आई वांट टू गेज, nine 10%. Through and through, what has been happening? See, market share is typically very stable. Mane, these guys are, what is market share? Revenue divided by total revenue, right? They have been able to pace up with the revenue, right? अब अगर मैं ये देखता हूं कि मोर और लेस ग्रोथ कितना हुआ है मार्केट का, पूरा टोटल ऑटो सेक्टर के मार्केट का, व्हाट इज द ग्रोथ? Around 19%. Are you understanding the kind of insights that I can generate using Wise Sheet? Similarly, if I were to just copy this function over here and मैं इधर से इसको पेस्ट करता हूं, राइट, एंड यहां पर जो मेरा ये रहेगा ना, दिस B1 is going to be H1, तो मेरा ग्रॉस इनकम, ग्रॉस मार्जिन का जो स्टफ है वो आ जाएगा. Just give me a minute. Yeah, 10 to the power 7 is not required. It's a percentage. Did you just see what happened? This is the gross profit margin. कोई COGS कुछ नहीं चाहिए मेरे को. I'll just take a median. कि median margin क्या है बॉस? पूरे मार्केट में दिस इज द मीडियन ग्रॉस मार्जिन. नाउ आई कैन मोर और लेस कंपेयर ना कि बजाज ऑटो का जो मार्जिन है, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन, दैट इज लोअर देन इट्स मीडियन. सो बजाज ऑटो का मार्केट शेयर इज 10% एंड मार्जिन इज लोअर. दैट गोज टू शो मे बी प्राइसिंग पावर, ठीक है, प्राइसिंग पावर बजाज ऑटो का इज नॉट एज गुड, और मे बी वॉल्यूम्स जो है वो ज्यादा सेल नहीं कर पाया है बजाज ऑटो, राइट? Not the volumes, rather I should say कि pricing power जो है that is not that good. Again, cost structure को वो उतना बढ़िया से control नहीं कर पाया है, right? So volumes will be captured in the market share mostly. Anyway, just have a look at what was happening to this particular margin. ठीक है, 26% से we went up to around 32%. We have like a 600 basis point का increase. ठीक है, 600 basis point का increase over a period of 5 years. मतलब every year we had a 120 basis point का expansion of margins. Do we see the similar trend in Bajaj Auto? Not really, right? So margins are a little bit more volatile and we don't see a very good trend over here. Do you understand?
आपको इंसाइट्स मिलते जा रहा है कैसे कैसे अपने एक एक सिंपल एक फंक्शन से दो तीन चीजें करके वाइस शीट का कैसे अपने एक मोर और लेस व्यू बना सकते हैं। अब अगर आपको रिसर्च करना है सो यू डू द रिसर्च ओवर दीज एरियाज ना, कि यहां पर अगर बजाज ऑटो अपना मार्केट शेयर स्टेबल रखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक तरह से बजाज ऑटो मोर और लेस हैज बीन ग्रोइंग एट अ 19% कैगार, बट वो एक तरह से हैज नॉट बीन एबल टू होल्ड इट्स ग्रॉस मार्जिन दैट मच। इंडस्ट्री में मार्जिन पूरा जाते जा रहा है, मतलब कोई इसका मार्जिन खा रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये एरियाज पे जैसे जैसे आप रिसर्च करोगे आपका प्रोसेस कितना स्मूथ होते जाएगा। राइट, आई जस्ट शो दीज टू एज वेल। Have a look over here. What's happening over here? ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, ईबीआईटी मार्जिन, सो दैट हैज बीन वेरी वॉलेटाइल इन द इंटायर सेक्टर। लेकिन अगर आप बजाज ऑटो को देखोगे, ठीक है, उनका जो ऑपरेटिंग इनकम रेशियो है ना, ईबीआईटी मार्जिन, दैट हैज बीन नंबर वन, वे हायर देन द इंटायर इंडस्ट्री, राइट? But at the same time, it is pretty stable. Now, what is the difference between gross and operating? The difference is the OPEX, R&D, SG&A, employees को manage करना, ये सारा चीजें मैंने मेरे को विदाउट इवन स्टडीइंग द कंपनी ये सारा इंसाइट्स मिलते जा रहा है, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज जो भी मेरे को आ रहा है आई कैन सिंपली राइट इट डाउन ना, वो मेरा जो ऑब्जर्वेशंस एंड ऑल है। अंडरस्टैंडिंग? सो सिमिलर मार्केट शेयर होल्ड कर पा रहा है, एट द सेम टाइम दे आर एबल टू कमांड अ वे हायर ऑपरेटिंग मार्जिन, एंड वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो कमांड कर रहा है बिकॉज वो लोग अपना जो ओपेक्स है, कि जो एम्प्लॉइज को सैलरी देने का बात है, जो एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट को मैनेज करने का बात है, एवरी सिंगल थिंग दे आर एबल टू डू इन एन एक्सेलेंट मैनर, दैट इज व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली कमांडिंग दिस हाई ऑफ अ मार्जिन, राइट? इफ आई वेर टू जस्ट डू दिस स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं निकालता हूं, सो इट इज अराउंड 5%, और यहां का अगर मैं निकालता हूं स्टैंडर्ड डिविएशन, यूज एवरीथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन सीएफए। आप देख रहे हो एक चीज, इंडस्ट्री में मार्जिन जितना वॉलेटाइल है, इट इज 5%, ठीक है, एसडी, लेकिन बजाज ऑटो का इट इज जस्ट 2%, दैट गोज टू शो समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग इन द ऑपरेटिंग मार्जिन वाला एरिया। मे बी दे आर हैविंग ह्यूज बैरियर टू एंट्री, वी डोंट नो क्या बैरियर टू एंट्री है, तो उस पर रिसर्च करो ना, उस पर देखो व्हाट इज द बैरियर टू एंट्री। इवन इफ यू आर यूजिंग से अ चैट जीपीटी और अ परप्लेक्सिटी टू रिसर्च, सो यू यूज दीज थिंग्स ना, कि मेरे को दिखा कि दिस इज द ट्रेंड, what do you think would be the typical reasons for barrier to entry? Maybe they have some certain network effects, certain scale effects aate ja raha hai that n number of other companies are not able to get. तो ये जो स्केल इफेक्ट आपका आते जा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये कब तक चल सकता है, यू कैन टेक अ व्यू अबाउट दैट। मे बी सर्टेन XYZ फैक्टर्स आर देयर बिकॉज ऑफ विच दे आर एबल टू स्केल दैट मच, राइट? मे बी brand name is the thing, right? So that is pretty much what we are looking into, and the last thing that we will use over here is the net margin, and we will take a view. Again, I'll take a median. Have a look. Consistently, Bajaj Auto has been able to outperform the industry, but the trend has been falling net income margin का, right? यहां पर इंडस्ट्री में द ट्रेंड हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर सम रीजन और द अदर। कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है ना, दिस इज एग्जैक्टली वेर योर रिसर्च शुड कम इन। रिसर्च स्टार्ट्स विद सब्ट्रैक्शन नॉट एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आपको देखना पड़ेगा ये ट्रेंड हो क्या रहा था यार, अचानक से इंडस्ट्री में मार्जिन, नेट मार्जिन जो है वो बढ़ कैसे गया, राइट? सो अगेन ईबीआईटी एंड नेट इनकम में डिफरेंस क्या होता है? इट इज सिंपली द इंटरेस्ट, मतलब यहां पर डेट में कुछ हो रहा था, दैट इज वेयर आई नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? कि डेट वाला जो लेवल्स है मोस्ट लाइकली दैट हैज गॉटन डाउन फॉर एन नंबर ऑफ कंपनीज, बट बिकॉज बजाज ऑटो इज डूइंग समथिंग, मे बी इट इज टेकिंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेट,
राइट, मे बी इट इज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर जहां पर उसको इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा लग जा रहा है, राइट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसका जो मार्जिन एंड ऑल है, सो दैट कीप्स ऑन फॉलोइंग, राइट, दैट इज प्रीटी मच व्हाट आई वांटेड टू शेयर ओवर हियर। ठीक है, आई थिंक दैट इज वे टू मच फॉर द इंटायर स्टफ। ठीक है, आई वुड रियली आस्क नाउ संजय सर टू टेक ओवर द डिस्कशन फॉर द राउंड अप्स। आई होप द सेशन वाज यूजफुल। चलो, Very good. See, around a month ago, Buddhaditya shared with me this white sheet stuff. And when I saw everything flowing on the Excel, कि सब चीज तो Excel में आ ही जा रहा है इसमें। Now we are stepping into the world of AI, जहाँ पे जो लोग भी Excel बहुत फास्ट करते हैं और पूरा वो करते हैं, वो सब कॉम्पिटेंस नहीं रहेगा। We need to have the best of tools. I think white sheets पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, टाइम स्पेंड करना सबको करना चाहिए, जो भी अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं अग्रेसिव है, जो कि मेरे ख्याल से एवरीबडी इज। एंड ऑब्वियसली लेट अस अंडरस्टैंड दैट आज का सेशन शायद 45 मिनट्स का सेशन हुआ है, ठीक है, या 1 आवर का। कल का सेशन ऐसा ही होगा मंडे का। तो 3 आवर्स में यू कांट एक्सपेक्ट दैट वी विल बी एबल टू अचीव माउंट एवरेस्ट, बट एटलीस्ट you will be aware of the tools that are the best right now. Screener.in, everybody is screaming like anything. It is good, I would say, but then we need to have a global perspective, and Screener.in में जो other liabilities and provisions वाला part है उसको खोल के देता ही नहीं है, और दिक्कत हो जाती है उस केस में to find out the payable का number of days and to model it that way. So I believe the session was good to begin with. Okay, can you please rank the session on a scale of 1 to 10 for me? Can you rank the session on a scale of 1 to 10 for me? Thanks a lot. Thanks a lot, because this gives us motivation to further fuel. Okay. Thank you. Thank you. We meet tomorrow again at 6 p.m. to continue the buy-side modeling. Okay. Have you called the company's name? No, I haven't called the Okay, company. please So, tell them. yeah. So, the company that we will be valuing tomorrow is called Action Construction Equipment. Okay, Action Construction Equipment, ACEAs. Company का नाम we will definitely share in the WhatsApp community. That is a company that we will try to make a mini model on and value, and we will be using Wise Sheet only. ठीक है, तो अगर आपका वाइस शीट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, यू कैन टेक, मैंने दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट टुमारो सेशन विल मोस्टली बी फोकस्ड ऑन कि इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन जो है वो कैसे अपने वैल्यूएशन के बारे में सोच सकते हैं, राइट। एक बाई साइड में, आई वर्क इन अ बाई साइड, सो बेसिकली बाई साइड जो है तो उसमें कैसे अपने मिनी मॉडल बनाते हैं एंड कैसे अपने प्रोजेक्ट मोर और लेस करते हैं, वी विल सी टू इट। एंड यू एब्सोल्युटली डू नॉट नीड टू यू नो make a 3 statement in a buy side. That is what we will try to understand. बहुत limited data के साथ we will make, and definitely this process can also be repeated in screener.in. तो किसी को भी अगर लगता है कि यार screener.in के डेटा से मेरा हो जाएगा क्या, मिनी मॉडल हो जाएगा, do not worry, ठीक है। Anyway, so if you can take Wise Sheet का subscription, great. If not possible, screener.in से भी आप ट्राई करोगे, आपका हो जाएगा। We would be very happy if you can share your model with us. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर ओवर हियर। अगर आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना, कंपनी क्या करता है वो सब थोड़ा सा करके आओगे, दैट विल बी ग्रेट। एनीवे, वी विल टेक अप द कंपनी टुमारो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आई होप द सेशन वाज वेरी यूजफुल, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी वो सब यार चेक कर लेना आयुष, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।